Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 8th of May 2020 and today we shall be seeing near about 9 articles from the Hindu and 1 article from Indian Express. PIB में जो भी कुछ mentioned है वो न्यूज़पेपर्स ने आज कवर करा है तो हम अलग से PIB को आज नहीं देखेंगे. The first news on the front page is important. That is the Vizag gas leak claims 11 lives, over 350 people hospitalized. तो वाइजैक में रिसेंटली एलजी पॉलीमर फैक्ट्री से एक स्टीरीन मोनोमर गैस जो है वो लीक हुई एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द स्टीरीन गैस from the prelims point of view. So styrene gas is an organic compound of C8H8 and it is stored in liquid form below the temperature 20 degree Celsius as it evaporates very easily. तो उसको evaporation polymerization रोकने के लिए temperature maintain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And this gas is used for making polystyrene, that is versatile plastics. Polystyrene is used to make various parts of electronic appliances like refrigerators. तो लॉकडाउन के बाद जैसे ही एलजी पॉलीमर्स ने अपनी एक्टिविटी को रीस्टोर किया तो ये इंसिडेंट हो गया. एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट बट अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स क्योंकि फैक्ट्री ने रीस्टोर किया अपना ऑपरेशन काफी टाइम बाद तो हो सकता है कि जो गैस है वो स्टैग्नेंट हो गई हो एंड एक्यूमुलेट हो गई हो टैंक्स के टॉप पे और वहां से वो बहुत इजीली इवोपरेट हो गई जैसे ही काम चालू हुआ. तो इसके हम थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं. एंड द सिम्टम्स इंक्लूड टायर्डनेस, सेंस ऑफ इनएब्रिएशन, स्लोड रिएक्शन टाइम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स एंड चेंजेस इन कलर विजन. और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से जो सिम्टम्स आते हैं बेसिकली वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड होते हैं, आई इरिटेशन होता है एंड लॉन्ग एक्सपोजर टू द स्टीरीन गैस कैन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल. तो इस न्यूज से जो आपको क्रक्स निकालना है दैट इज ऑल अबाउट द स्टीरीन गैस from the prelims perspective. Second, from the mains point of view, what you can do is try to develop your perspective regarding the chemical disasters in India. And the biggest chemical disaster so far has been of the 1984, that is the Bhopal gas tragedy. So this is all that the first page of the Hindu of the day gives. And I'm moving to our next news, that is on page number 5. Vande Bharat mission begins, first batch of evacuees arrive. So India's largest evacuation program has been named as Vande Bharat mission. ये नाम आपको पता होना चाहिए from the prelims point of view और जब भी आपको India's largest evacuation program को कोड करना हो. So इस न्यूज में there is nothing new. Already हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं about the evacuation program. Like जो evacuation program है वो पेमेंट बेसिस पे हो रहा है and more than 500,000 Indian diaspora is stranded in the Middle East region and Air India along with the Indian Navy are operating such evacuation operations. So just take to your notes Vande Bharat mission, that is the name of the evacuation program. Coming on to the editorial page now, the first lead says conducting elections during a pandemic and the author of this article is SY Qureshi, the former CEC. और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें देते हैं हर बार. सो इस आर्टिकल का क्रक्स हम बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं. महाराष्ट्र में रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने आया है. कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज लाइक that the current CM of Maharashtra, that is Mr. Thackeray, took the oath as a chief minister without being a member of legislative assembly or the legislative council. तो जैसे कि आपको पता है कि बिना MLA या MLC बने भी एक पर्सन चीफ मिनिस्टर बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 months according to the article 164 of the Indian Constitution. But आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 6 months वो कंटिन्यू नहीं कर सकता उस पोस्ट पे अनटिल अनलेस वो इलेक्शन लड़के एमएलए या एमएलसी बन गया हो. सो कोरोना वायरस के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाय यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 324 इट पोस्टपोन द इलेक्शंस which were scheduled for March 26. तो March 26 पे जो इलेक्शंस होने वाले थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन कर दिए ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक जिससे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है अभी. एंड द 6 months पीरियड of the current chief minister of the Maharashtra is due to lapse by May 27. तो अगर 27th of May से पहले वो MLA या MLC नहीं बनते हैं so he cannot continue as the chief minister of the Maharashtra state. So what the government of Maharashtra did was they proposed to the governor to nominate Mr. Thackeray, that is the current chief minister of Maharashtra, to the legislative council of the state so as to make him a member of legislative council. Article 171 of the Indian Constitution empowers the governor to nominate an individual to the legislative council of that particular state. But that individual should have special knowledge or practical experience of
आर्ट्स, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, साइंस और सोशल सर्विस। कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टेट्स के केस में इंक्लूडेड है, बट राज्यसभा के नॉमिनेशन में प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे ये 4 हैं, बट स्टेट्स के केस में कोऑपरेटिव मूवमेंट भी है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। कमिंग बैक टू द महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, गवर्नर डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द प्रपोजल मेड बाय द गवर्नमेंट, ऑल्दो वहां पे 2 सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं, तो गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं अंडर दी सोशल सर्विस कैटेगरी, बिकॉज इन 1961 अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट पॉलिटिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोशल सर्विस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि ये जो 2 सीट्स वेकेंट हैं, दे कैन नॉट बी फिल्ड इफ द टेन्योर इज लेस देन दी 1 ईयर। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। तो गवर्नर ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। एक और ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास है वो ये है कि आर्टिकल 164, जिसके अंदर 6 मंथ्स तक कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है बिना एमएलए या एमएलसी इलेक्ट हुए, उसको दोबारा इन्वोक कर सकते हैं। बट Supreme Court in SR Chaudhary versus State of Punjab in 2001 clearly said that this would be equivalent to the subversion of the principle of representative government and it will be undemocratic in nature and thus will be declared invalid। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि 164 का अगर बार बार यूज होगा तो उसे इनवैलिड बोल दिया जाएगा। तो अगर अभी करंट गवर्नमेंट उसका यूज करती है तो चीफ मिनिस्टर वो वैसे भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे, बिकॉज अगेन द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट मूव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई डेट्स अनाउंस करी हैं इलेक्शंस की, और इलेक्शंस 21 मई को होंगे। So this is a big relief for the current chief minister of the महाराष्ट्र। क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इलेक्शंस डिक्लेयर करने के अलावा कोई और ऑप्शंस थे, हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक बार इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है, जो कि 26 मार्च को वहां पे होने थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने तक ही पोस्टपोन कर सकता है, और वो जो 6 महीने तक पोस्टपोन कर सकता है उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए या तो एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए या आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। बट हेल्थ या एपिडेमिक ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको यूज करके नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया जाए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनडेफिनेट पीरियड तक इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकता है, बिकॉज नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नहीं है अभी हमारे देश में। सेकेंड ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए महाराष्ट्र में, बट अगेन एक स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है ये वैसे भी इलेक्शन कमीशन को आने वाले टाइम में लेना पड़ता, बिकॉज इलेक्शंस बहुत सारे स्टेट्स में ड्यू हैं, लाइक बिहार, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। रिसेंटली साउथ कोरिया में नेशनल इलेक्शंस हुए और वहां पे नियर अबाउट 44 मिलियन वोटर्स ने वोट करा। तो कोरोना वायरस के केस में भी साउथ कोरिया ने इतना सक्सेसफुल इलेक्शन वहां पे कंडक्ट करवाया। सो दिस कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल। और अगर स्ट्रिंजेंट मेजर्स को अप्लाई करते हुए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की कोशिश करी जाए तो इलेक्शंस डेफिनेटली यहाँ पे भी हम करवा सकते हैं। क्या मेजर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज कर सकता है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है। सो कुछ टारगेटेड मेजर्स हैं लाइक प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग्स या मोबाइल बैलेट बॉक्सेस। सो इन चीजों का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड विद इट्स प्लान एंड कंडक्ट इलेक्शंस इन नॉट ओनली महाराष्ट्र बट आल्सो इन द अदर स्टेट्स वेयर द इलेक्शंस आर ड्यू, सो एज टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल गाइस आप बहुत अच्छे से एक बार और पढ़िएगा और इसको सेव करिएगा पॉलिटी नोटबुक में। सेकेंड एक एडिटोरियल है टॉक्सिक डिजास्टर, ये अगेन स्टीरिन गैस लीक के ऊपर है, और यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ hazardous chemical rules 1989. So these rules lay down strict norms on how such chemicals should be handled and stored. तो ये एक जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में कोट कर सको। गाइस रिमेंबर वन थिंग कि केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड बहुत ही वेग लेजिस्लेशंस हैं इंडिया में, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा स्टैचू नहीं है जो हॉलिस्टिकली कवर करे सारे केमिकल डिजास्टर्स को। तो जो भी पावर्स ड्रॉ होती हैं वो ऐसे ही पार्ट्स एंड पार्सल्स में होती हैं। तो एक ये जो रूल यहाँ पे मेंशन हुआ है, जस्ट मेक नोट ऑफ इट, और आप इसे याद रखें कि ये रूल मेंशन करता है द नॉर्म टू हैंडल एंड स्टोर hazardous chemicals in India। सेकेंड यहाँ पे जो एक आर्टिकल है वो भी काफी अच्छा है, एंड इट इज इंडिया नीड्स टू एनैक्ट अ कोविड लॉ।
जो इंडिया में लॉकडाउन किया गया है उसने अपनी पावर्स 3 जगह से डिराइव करी है, ये हमने कल भी देखा था। तो वो 3 जगह को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, सेकंड इज एपिडेमिक्स एक्ट ऑफ 1897 एंड द थर्ड इज सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती है बिकॉज दो ही ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी को लगाने के। द वन इज आर्म्ड रिबेलियन एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन। हेल्थ एंड एपिडेमिक्स को ग्राउंड नहीं बनाया गया है। तो इस टाइप की एपिडेमिक को डील करने के लिए एक सेपरेट कोविड लॉ होना चाहिए, ये इस आर्टिकल का कहना है, इन स्पाइट ऑफ ड्रॉइंग पावर्स फ्रॉम ऑल दीज स्टैच्यूज एंड सेक्शन। थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं हम डीएमए और एपिडेमिक्स एक्ट के बारे में। तो जो डीएमए है उसमें एनडीएमए है, दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज चेयर्ड बाय द पीएम। सेकंड इज द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी विच इज चेयर्ड बाय द होम सेक्रेटरी। तो ये दो बॉडीज हैं अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो अपेक्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं ड्यूरिंग द सिचुएशंस ऑफ डिजास्टर्स और एपिडेमिक्स। स्टेट्स के पास एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है जिसके अंदर अथॉरिटीज को पावर मिलती है टू मेक रेगुलेशंस, टू डिफाइन पेनल्टीज एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटीज टू द ऑफिशियल्स हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने पावर डिराइव करी है वो करी है अंडर सेक्शन 144 सीपीसी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसने नो डाउट कम्युनिकेशन को बहुत सीमलेस बना दिया है और बहुत इफेक्टिव चैनलिंग करी है डिसीजंस की फ्रॉम टॉप टू डाउन बिकॉज इट इज डायरेक्टली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट द प्रॉब्लम इज विद द एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, जो कि एक कॉलोनियल टाइम्स का लॉ है और शायद 21st सेंचुरी के सिचुएशंस को टैकल करने के लिए नहीं बना है। However, recently through an ordinance, it was amended so as to protect the health workers from the assaults। इस आर्टिकल में दो एग्जांपल्स मेंशन है जिन कंट्रीज ने कोरोना वायरस स्पेसिफिक लॉ पास किया। द वन इज यूके एंड द सेकंड इज सिंगापुर। दोनों ने कोरोना वायरस स्पेसिफिक लॉस पास किए अपने कंट्री में और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन क्रिएट किया जो कि सारे इश्यूज से डील कर, टेस्टिंग, हॉस्पिटल्स, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन्ड है। तो ये जो एक पर्टिकुलर लॉ पास किया है विथ रिगार्ड्स टू दिस एपिडेमिक, दैट इज मोर इफेक्टिव इन डीलिंग विद द सिचुएशंस। जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एडहॉक है एंड रिएक्टिव है। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ना कि प्लान करके। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इंडिया क्रिएट कर ले तो शायद और ज्यादा बेटर होगा आपस में कम्युनिकेट करना, डील करना, डिसीजंस लेना और उनको एग्जीक्यूट करना। सो इस आर्टिकल में बस एक ही चीज बाहर आती है कि दैट इज इंडिया नीड्स टू एनैक्ट अ कोविड लॉ। ऑन पेज नंबर 8, IMD includes POK in weather forecast. Recently, Indian Meteorological Department ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कुछ सिटीज के ऊपर वेदर फोरकास्ट जनरेट किया है। So IMD has started including Gilgit Baltistan and Muzaffarabad, the parts of POK into its forecast. रिसेंटली पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिए थे कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करवा लो गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में जो कि पीओके में है। तो ये जो दो इंसिडेंट्स हैं ये लेटेस्ट इश्यूज हैं बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान रिलेशंस। So this is the time to update your India and Pakistan relation notes and you must include it in your international relations and development notebook. Moving next on to page number 9, no scientific studies report styrene gas causing deaths। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि कोई भी एक्सटेंसिव या एग्जॉस्टिव क्लिनिकल स्टडीज नहीं हुई हैं जो कि स्टैब्लिश करे कि स्टीरीन डेथ्स भी हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेंशन्ड है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, बट स्टीरीन गैस के लॉन्ग एक्सपोजर से डेथ हो जाए ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फर्दर स्टडीज़ की और ज़रूरत है कि वाइजैक में जो डेथ्स हुई हैं वो स्टीरीन गैस से ही हुई हैं या उनमें कोई और भी कंपाउंड्स का मिलना पॉसिबल है। You should read it along with the article mentioned on the first page. Moving next, $40 charge for sea evacuation by the Indian Navy. Recently, we saw that the Indian Navy has launched Operation Samudra Setu, that is the sea bridge, जिसके थ्रू Indian Navy will evacuate the repatriates stranded in the other countries. But it is the first time that the Indian Navy is charging for such evacuation services and for providing safe passage to the evacuees.
सो इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में दोनों जगह पे पॉइंट्स हैं। तो फेवर वाला पॉइंट जो है वो ये है बेसिकली कि एयर इंडिया जब चार्ज कर रहा है तो इट विल बी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन विद फ्यू ऑफ द इवैक्यूएटीज कि आपने कुछ लोगों से चार्ज करा, कुछ लोगों से नहीं करा। सो इसीलिए एक नॉमिनल फी रखी गई है $40 की, विच इज नियर अबाउट 3000 रुपीज पर इवैक्यूएटी, जो इंडियन नेवी चार्ज करेगा। बट इसके जो पॉइंट्स अगेंस्ट में है दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, and they say that this kind of activity will make for bad optics to see Indian Navy taking money for safe passage। मतलब it is totally against the military ethos of service कि military पैसा ले रही है evacuation का और safe passage provide करने का। so यहाँ से बस crux यही निकल के आता है। And now we shall move on to the next news. This is one news on the international page. Surge in domestic violence, says WHO. 60% rise has been noticed in the domestic violence cases across the Europe. ये आपको सिर्फ एक फैक्ट प्रोवाइड करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस 60% सर्ज हुआ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस एपिडेमिक। बस आपको यही याद रखना है एंड यू कैन यूज इट इन योर एसे paper 1 and paper 2 as well. So this was the last news from the Hindu, and now we shall be seeing one news from the Indian Express. This is the gas that leaked, what styrene is for and how it behaves. This is again about the styrene gas. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका कंपाउंड C8H8 है, ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर करी जाती है, इवापोरेट बहुत जल्दी हो जाती है, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलिस्ट्रीन, और इसका जो एक्सपोजर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसमें यही सारी बातें हैं रिलेटेड टू द स्टीरीन गैस जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी रैप द डेली न्यूज नट्स ऑफ द डे एंड वी एक्सपेक्ट यू to comment your queries, suggestions, doubts in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.